ਜਿਹੜੇ 4 ਅਵਾਰਡ ਮਿਲੇ ਇसी ਕਰਕੇ ਮਿਲੇ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਸਟ ਇਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬੈਸਟ ਇਨ ਪੰਜਾਬ, ਥਰਡ ਅਵਾਰਡ ਸਾਨੂੰ ਬੈਸਟ ਇਨ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਅਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਲੇਟੈਸਟ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆਨ ਬਾਨ ਸ਼ਾਨ ਹੀਬੀ ਕੌਫੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭੂਮੀ ਪੂਜਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। There are a lot of superstars जैसे सुनील शेट्टी हो गए, उनका भी मुंबई का हमने विला डिज़ाइन किया हुआ है। 100 गज से कम वाले घरों में जैसे कोई ऑटो वाला इंसान है या कोई ड्राइवर है जो एक आर्किटेक्ट हायर नहीं कर सकता, इस तरह की कैटेगरी के लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेंसी दे रहे हैं। उनको घर का पूरा नक्शा हम बना के देंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसको निकाल के आप साउथ सिटी ले जाइए, आप चाहे मुल्लापुर ले जाइए, चाहे बेंगलोर, दुनिया के किसी भी एरिया में ले जा सकते हो और सेम बिल्डिंग विदाउट एनी वेस्टेज ये सेम रेडी हो जाएगी। सिटी होम देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं राजेश मेहरा। इंटीरियर एक्सटीरियर और बिल्डिंग मटीरियल एग्जीबिशन लुधियाना के सानेवाल के अंदर लगी हुई है। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहलाने वाला शहर लुधियाना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਿਸ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਵਾਸਤੇ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਹੋਟਲਸ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਟਾਲ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰ ਔਰ ਹੋਟਲਸ ਵਗੈਰਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ 4 ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਔਰ ਆਪਣਾ ਹੋਟਲ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਓ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ ਵੀ ਉਹ ਵਾਕਈ ਉਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾਈ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਓਨਰ ਨੇ। ਸਿਧਾਰਥ ਜੀ ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣੀ ਬੁਕਲੇਟ ਚੱਕੀ ਸੀ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਨ ਆਰਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ ਜੀ ਸਰ, ਸਾਡਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇਮ ਮੂਨ ਆਰਕ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। 4 ਅਵਾਰਡਸ ਵਿਨਰ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਦੀ ਅਵਾਰਡਸ ਵਿਨਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਹੀ ਅਵਾਰਡਸ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ। ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟਾਲ 'ਚ ਆਏ ਆ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵਾਹ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਨਿਕਲੀ ਆਵਾਜ਼? सर बेसिकली लुधियाना शहर शौक ये जो शौकीन बंदे रहने वाले लोग है उन्होंने घट आवाज़ ਜਾਂ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲੋਂ ਜਾਂ ਵੱਖਰਾ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਇसी ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਪਹਿਚਾਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਘਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਟਲ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੇਸਟ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ, ਟੇਸਟ ਤੇ ਬਜਟ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਬ ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੇਸਟ ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ 4 ਅਵਾਰਡ ਮਿਲੇ ਇसी ਕਰਕੇ ਮਿਲੇ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਸਟ ਇਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬੈਸਟ ਇਨ ਪੰਜਾਬ, ਥਰਡ ਅਵਾਰਡ ਸਾਨੂੰ ਬੈਸਟ ਇਨ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਅਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਲੇਟੈਸਟ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆਨ ਬਾਨ ਸ਼ਾਨ ਹੀਬੀ ਕੌਫੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ 2022 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਵਾਰਡ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਵਾਰਡ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਪਾ ਕੇ? ਆਪਣਾ ਜੌਬ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟਡ ਆਰਡਰ ਨਾ ਆਉਣ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਾਈਨ ਦੀ ਮਜ਼ਾ ਇਸੀ 'ਚ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੰਮ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੀਅਰ ਐਂਡ ਡੀਅਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸ਼ੋਪ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਕਸਟਮਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਫੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਦਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਥੋਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਡਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ 100% ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ, ਭੂਮੀ ਪੂਜਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਭੂਮੀ ਪੂਜਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਰਿਤੂਜਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਰਿਤੂਜਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਅੰਦਰ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ, ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਦਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਰ ਟਾਈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਦੀ ਬਲੈਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਧਰ ਵਾਈਟ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣਾ डिज़ाइनिंग करते हो? एक हमेशा ऐसा होता है कि घर की जो वाइफ होती है मतलब हस्बैंड एंड वाइफ में जो वाइफ होती है उसकी ज़्यादा चलती है घर में, एंड उसकी चॉइस काफ़ी मैटर करती है व्हेन एवर यू वांट टू डिज़ाइन योर हाउस, वेदर यू वांट टू डिज़ाइन योर एनी कमर्शियल आउटलेट, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो वुमेन साइड है, अगर मैं बताना चाहूँ तो एज एन डिज़ाइनर आई थिंक कि वेन एवर जब मेरे पास कोई क्लाइंट आता है हमारे ऑफिस में, सो वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द टेस्ट ऑफ द क्लाइंट, ठीक है। वी अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ पीपल आर देयर लाइकिंग्स, व्हाट काइंड ऑफ रेफरेंसेस दे वांट टू हैव फ्रॉम अस, व्हाट काइंड ऑफ दिस, एज वी टॉक्ड अबाउट द 4 नेशनल विनर्स वी आर, तो उसमें भी हमने क्या क्या चीज़ें ऐसी जो एस्थेटिकली डाली हमारे डिज़ाइंस में कि जो हमें फेम दे रही है, तो वो चीज़ें हम चाहते हैं कि क्लाइंट अपने घरों में इम्प्लीमेंट करे। हम भी खुद भी क्लाइंट्स के घरों में वो चीज़ें इम्प्लीमेंट कर रहे, और वो अपने आप में ये इतनी ज़्यादा ब्यूटीफाई कर देती है उस चीज़ को कि वो अपने आप में घर जो है क्लाइंट को अपने आप ही उस घर से फेम मिल जाती है। जैसे एक हाउस बोले, एक विला बोले, तो उसमें बड़ा डिफरेंस आ जाता है। तो ऐसे ही जैसे दूसरे शहर हैं, छोटे शहर हैं, चाहे लुधियाना इतना बड़ा अभी नहीं बने दिल्ली और बॉम्बे के मुकाबले में, लेकिन उनकी जो हर लैंड की बहुत वैल्यू है। तो कई बार क्या होता है, गांव में तो लैंड ज़्यादा होती है, चाहे 2 रूम्स डाल लो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो 2 बेड 1 बैग BK 3 BK की बड़ी वैल्यू है। तो आप उनके हिसाब से डिज़ाइन करते हो कि आप अपनी आर्ट से उसको डिज़ाइन करके देते हो? वी डिज़ाइन अकॉर्डिंग टू स्पेस जो हमारे पास क्लाइंट लेके आते हैं, बट हम उस तरह से डिज़ाइन को क्रिएट करते हैं कि क्लाइंट को वो फील ना आए कि अच्छा हम सिटी में रह रहे हैं या हम रूरल में रह रहे हैं या अर्बन में रह रहे हैं। हम इस तरह करते हैं कि वी गो सस्टेनेबली, मतलब वहाँ पे हम थोड़ा ग्रीन टच देंगे कि क्लाइंट को डलनेस या पॉजिटिविटी आए, ग्रीनरी अपने आसपास आंगन में जो ग्रीनरी होती है वो आए। तो हम इस तरह डिज़ाइन करेंगे उसकी सर्कुलेशन स्पेस, उसकी ओरिएंटेशन ऑफ हाउस, कि उसको उस घर में पॉजिटिविटी आए फ्रॉम आवर डिज़ाइन, फ्रॉम आवर क्रिएटिविटी। सबसे ज़्यादा सदाजी लाइटिंग का बहुत ध्यान होता है, क्योंकि आमतौर पे कई बार बिल्डर, जैसे आपके बोलते हैं, बिल्डर डिज़ाइन तो कर देता है, बिल्ड कर देता है मकान, लेकिन अंदर लाइटिंग की प्रॉब्लम है। सारा दिन वो क्या जो पावर है उसका खर्चा ज़्यादा आ जाता है, तो आप उसका कैसे ध्यान रखते हैं? सर, जो वास्तुकार है जिसे हम आर्किटेक्चर कह रहे हैं, वो सारा का सारा डिपेंडेंट इस पे करता है कि आपका घर कितना हवादार है, नेचुरल लाइट कितनी आ रही है। अगर हम पूरे घर को कवर कर देंगे, हम वास्तु का ध्यान नहीं रखेंगे, हम ओपन स्पेस नहीं रखेंगे, तो घर में रहने वाला इंसान वैसे ही डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है नेचुरल लाइट का, जो आजकल लोग बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। जितनी घर में ओपननेस होगी, हमने देखा होगा पुराने घर लोग 14 फुट पे लेंटर डालते थे, 16 फुट पे डालते थे, ऊपर रोशनदान रखते थे। उसके पीछे कारण था कि घर बड़ा बड़ा लगे और खुला लगे, वेंटिलेशन की प्रॉब्लम ना हो। ये साइकोलॉजिकली भी हमारे ऊपर बहुत इफेक्ट डालता है। और जहाँ तक रही आर्टिफिशियल लाइट्स की, जितनी भी लाइट्स है वो हमारे माइंड को, हमारी साइकोलॉजी को बहुत इफेक्ट करती है। अगर एक रूम की लाइट हम कम है और डल रूम लगेगा, तो वहाँ पे रहने वाला इंसान भी डल हो जाएगा, हो सकता है वो आगे चल के उसको डिप्रेशन का भी शिकार हो जाए। लेकिन अगर एक छोटा रूम है, चाहे छोटा घर है, उसमें फुल ऑफ लाइट है, उसमें हवा पानी का पूरा ध्यान रखा हुआ है, तो वहाँ पे इंसान रहने वाला उतना ही हेल्दी रहेगा और उतना ही उसका अपने कामों की ओर मन लगेगा, उसका घर में रहने का दिल करेगा। कि हाँ, आजकल हम देखते हैं कि लोग घर में आते बाद में हैं, बच्चे हैं या बाहर सीधा घर भागने की बात करते हैं कि शाम को मैं एक बार घूम के ही आ जाऊँ, एक चक्कर ही लगा लाऊं, और उनको घर जैसे ही आ जाते हैं पूरा वो शांत हो जाते हैं। उसके पीछे कारण ही ये है कि घर उनका वास्तु के अकॉर्डिंग नहीं बना हुआ, घर अच्छे से प्लान नहीं है, घर में वेंटिलेशन की समस्या रही है। दिस इज़ द मेन रीज़न। मैं अपने बाकी साथियों को भी ये कहना चाहूँगा, चाहे घर में एक पेड़ लगाओ, ग्रीन, अगर हम बिल्डिंग की बात करें, जितनी चाहे उनके पास 50 गज जगह है, चाहे 60 गज जगह है, चाहे 200 गज है, चाहे 2000 गज है, कम से कम एक पेड़ की या एक ग्रीन एरिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें सबको लेनी चाहिए। हमें इस इन्वायरमेंट के, हम जितने भी घर बना रहे हैं, बिल्डिंग्स बन रहे हैं, उसके लिए कितने पेड़ काटते हैं। कम से कम अगर एक इंसान अपने घर में एक पेड़ को अडॉप्ट कर ले, तो मुझे लगता है कि हमारे आने वाले एनवायरनमेंट में बढ़े ही, जैसे लुधियाना बहुत पोल्यूटेड है, जहाँ इंडस्ट्री के कारण काफ़ी पोल्यूशन है, एक पेड़ लगाने से उसका हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर भी काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। और सेकेंडली लाइटिंग और वेंटिलेशन जो बहुत ज़रूरी मुद्दे हैं बीइंग इस लाइन के लिए, चाहे वो कंस्ट्रक्शन कर रहे हो या प्लानिंग कर रहे हो, उसका भी खास ध्यान रखना चाहिए।
चलो प्रोडक्ट पे आपके आते हैं, आपने अभी तक कितने घर डिज़ाइन कर दिए जहाँ ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली? सो लुधियाना में इफ़ यू टॉक वी हैव डिज़ाइन लॉट ऑफ सेलिब्रिटी के जो आर्टिस्ट है, मेकअप आर्टिस्ट है, उनके हमने घर डिज़ाइन कर चुके हैं. देयर आर लॉट ऑफ सुपरस्टार जैसे सुनील शेट्टी हो गए, उनका भी मुंबई का हमने विला डिज़ाइन किया हुआ है. सो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हम ऐसे नहीं कि वी आर ओनली डिज़ाइनिंग फॉर सेलिब्रिटीज़. हम एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से लेके एक रिच अपर क्लास फैमिली तक हमने ईच एंड वेरी डिज़ाइन हमने क्रिएट किए हुए अकॉर्डिंग टू पीपल टेस्ट एंड बजट. हमने 700 से ज़्यादा पिछले 7 सालों में प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं. और एक और इनिशिएटिव हमने लिया है. कई लोग ऐसे हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं, या अपना घर अफोर्ड नहीं कर सकते, या किसी डिज़ाइनर को वो हायर नहीं कर सकते क्योंकि फ़ीस बहुत ज़्यादा है. 100 गज से नीचे जितने भी घर हैं वो हमने अपनी वेबसाइट पे, अपने पेज पे, अपने सोशल मीडिया चैनल्स पे भी बताया गया. 100 गज से कम वाले घरों में, जैसे कोई ऑटो वाला इंसान है, जहाँ कोई ड्राइवर है जो एक आर्किटेक्ट हायर नहीं कर सकता, इस तरह की कैटेगरी के लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेंसी दे रहे हैं. उनको घर का पूरा नक्शा हम बना के देंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट. उसके लिए हम ना उनसे कोई भी एक भी चीज़ हम उनसे हायर करेंगे, ना कोई एक पैसा लेंगे, जस्ट अपनी सर्विसेज पूरी उनको प्रोवाइड करेंगे. सो दैट जो वो एक समाज का एक वो हिस्सा है जो हमारे लिए सुबह से लेकर शाम तक छोटा हाथी चलाते हैं, टैक्सी चलाते हैं, ऑटो चलाते हैं, लेकिन जब घर में जाते हैं उनको घर में वेंटिलेशन ना होने की वजह से या प्रॉपर प्लानिंग ना होने की वजह से वो इस चीज़ से, एक डिज़ाइनिंग पार्ट से पीछे रह जाते हैं. तो हमने ये चीज़ उनके सामने लाई है कि जितने भी लोग हमारे पास 100 गज से नीचे हैं और बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, जहाँ वो ब्लू कॉलर जॉब कर रहे हैं, उनका घर हम फ्री ऑफ कॉस्ट डिज़ाइन करके देते हैं. तो बहुत अच्छी बात है आपका, जो चैरिटी भी आप कर रहे हैं साथ में. अभी आप आपके जो आपने प्रदर्शनी करी है उसमें देखते हैं सबसे ज़्यादा आप समझते हो कि हमने इस पर मेहनत करी है और सबसे ज़्यादा खूबसूरत है और सबसे ज़्यादा लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया, वो कौन सा है मुझे वो बताइए. ये हिबी कॉफी सराबा नगर में है. यही भी को. हाँ जी, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि जहाँ आप ये पूरा एरिया जो हिबी, अगर लुधियाना में सराबा नगर में जाएंगे, दिस एंड दिस, लुधियाना के सराबा नगर एरिया में निकलते हैं तो वहाँ पे आके गाड़ी रुक जाती है, स्लो हो जाती है, जस्ट बिकॉज दिस एलिवेशन के अकॉर्डिंगली. इसमें लाइटिंग का बड़ा ध्यान रखा हुआ है. ये सारा का सारा स्ट्रक्चर आप एक स्थान से बेंगलोर में मूव कर सकते हैं. ये सारा ओपनेबल है, कस्टमाइज होके बनाया गया है. इसे एक एक चीज़, इवन तक टाइल्स, इज इट ऑल मूवेबल? यस यस, इसको निकाल के आप साउथ सिटी ले जाइए, आप चाहे मुल्लापुर ले जाएं, चाहे बेंगलोर, दुनिया के किसी भी एरिया में ले जा सकते हो, और सेम बिल्डिंग विदाउट एनी वेस्टेज ये सेम रेडी हो जाएगी. ये महाजन्स का घर है, ये साउथ सिटी में बना हुआ है. ये 400 गज का है. ये घर है, ये रजौरी से आए हुए हैं, तो उनका घर हमने अभी रिसेंटली डिज़ाइन किया है. ये महक कुवात्रा विला है. महक कुवात्रा एक बहुत अच्छा नाम है लुधियाना में, मेकअप आर्टिस्ट हैं. उनका हमने स्टूडियो भी डिज़ाइन किया, अब उनका हम घर भी डिज़ाइन कर रहे हैं. ये 2500 गज में बनने वाला घर है, पूरा कंटेम्प्रेरी बेस पे हम डिज़ाइन कर रहे हैं. ये कैफ़े हमारा दिल्ली डेलो रोड पे बन रहा है. ये अहमदगढ़ की पार्टी है जो इस कैफ़े को बना रहे हैं. इसमें डिज़ाइन है, ये सारा शेल्फ स्ट्रक्चर बना हुआ है. इस तरह का शेल्फ स्ट्रक्चर आपको पूरे नॉर्थ इंडिया में नहीं बनेगा जो हम उनको डिज़ाइन करके दे रहे हैं. हम डिज़ाइन भी करेंगे और उनको कंसल्टेंसी भी हम दे रहे हैं. ये सारा का सारा हमारा द्वारा डिज़ाइन किया गया है. कंसल्टेंसी जो आते हैं कितनी देर तक देते हैं? सर, जब से वहाँ प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले, जब आपके माइंड में आइडिया आया कि आपको कुछ बनाना है, आपके पास स्पेस है, वहाँ से फाउंडेशन से लेके भूमि पूजन से लेके लास्ट तक, जब तक पूरे वहाँ पे कस्टमर नहीं आ जाते, जहाँ वहाँ पे आपका गृह प्रवेश नहीं हो जाता, एंड तक हमारी कंसल्टेंसी रहती है. इवन कौन से कलर का पर्दा लगाना है, वुडन फ्लोरिंग का कलर कौन सा रहेगा, कौन से शेड में जाएंगे, फ्लोरिंग हमने मार्बल में करनी है कि टाइल्स करनी है, वो कस्टमर्स के बजट के अकॉर्डिंग है. आपकी डिज़ाइनर टीम कितनी की है? आप अकेले ब्रेन यूज़ करते हैं या सबकी टीम है? सर, हम ब्रेन ऐसा नहीं है कि अकेले हम यूज़ करते हैं. हमारे साथ पूरी 32 मेंबर्स की टीम है जो दिन रात पूरी मेहनत करती है इस मूनाक हमारे प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने, हमारी फर्म को आगे बढ़ाने के लिए. हम सिर्फ एक फेस है जो उनको लीड करते हैं, या उनको थोड़ा गाइड करते हैं, लेकिन इसके पीछे एक एक प्रोजेक्ट के पीछे बहुत मेहनत है, बहुत डेडिकेशन है, बहुत हार्ड वर्क है, कई सालों की पढ़ाई है, कई सालों का एक्सपीरियंस है. उसके बाद एक चीज़ निकल के सामने आती है. पढ़ाई की बात करें, एक मैडम से पूछ लें, आप इसमें डिज़ाइनिंग में कौन सी पढ़ाई की है? मैंने BR की हुई है, बैचलर इन आर्किटेक्चर. मैंने पुणे से मेरी पढ़ाई की हुई है, DY पाटिल कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर से. क्या कहना चाहेंगे अपने कस्टमर को? I would like to say, if you want to design your space, see, if you are hiring an architect for your designing,
आई वुड से कि आप उस तरह से अपना क्या दे रहे हो, अपने अपनी तरफ से जो एफर्ट्स दे रहे हो ना, कि इफ़ यू आर हायरिंग एन आर्किटेक्ट, आपको वो लाइवलीहुडनेस वहाँ पे मिले आपको उस घर में, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू आर कंसल्टिंग समवन एज एन आर्किटेक्ट। देन मैं यही बोलूँगी कि वी विल गिव यू गुड लाइक बजट फ्रेंडली गुड मटेरियल, we are using good material, so it will be a good sustainable livelihood house, livelihood environment we will be giving you as an architect. It's our responsibility. बिल्कुल, जब आपने जिम्मेदारी ले ली है तो फिर जिम्मेदारी निभानी भी पड़ेगी। जैसे सरदार जी ने बताया भाई, भूमि पूजन से लेकर जब तक घर बिल्ट नहीं होता, कॉलोनी बिल्ट नहीं होती, होटल बिल्ट नहीं होते, तब तक हमारी जिम्मेवारी है। और ख़ास बात इन्होंने ये बताई कि गरीबों के लिए जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, चाहे छोटा घर बनाना चाहते हैं, उसके लिए जो फ्री कंसल्टेंसी देते हैं, फ्री डिज़ाइन करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और कहते हैं ना, जब आप 100 रुपये कमाओ तो कुछ ना कुछ दान भी करना चाहिए, तो ये बहुत अच्छी सेवा करें, उसके लिए हम आपको मुबारकबाद देते हैं। थैंक यू सो नाइस। इसी के साथ मैं जो दर्शक देख रहे हैं उनको कहना चाहूँगा कि इस प्रदर्शनी में ज़रूर आइए, और ख़ास करके मून आर्क जो स्टॉल लगा हुआ है इसमें ज़रूर आइए और अपने घर को कैसे डिज़ाइन करना है इनसे समझें और देखें, और इनको ऑर्डर भी दे सकते हैं, इनवाइट भी कर सकते हैं अपने घर पे, फ्री कंसल्टेंसी भी देंगे। कैमरामैन सलमान के साथ राजेश मेहरा, सिटी न्यूज़ लुधियाना।